بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ریاض عارف اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آپ کے مطابق۔ وزیر اعظم پاکستان جناب شہباز شریف نے وزارت عظمیٰ کا حلف اٹھانے کے بعد سب سے پہلے اپنے اسلامی برادر ملک سعودی عرب کا دورہ کرنا بہتر سمجھا۔ وزیر اعظم پاکستان کے ساتھ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری اور وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب، محسن داوڑ، اس کے علاوہ شاہزین بگٹی وغیرہ بھی ساتھ تھے۔ جب وزیر اعظم پاکستان سعودی عرب پہنچے تو ان کا پرتقاب استقبال کیا گیا اور ان کو بڑے اچھے طریقے سے ویلکم کیا گیا۔ وزیر اعظم کی ملاقات ولی عہد سلطان بن سلمان، شہزادہ محمد بن سلمان سے ہوئی اور ان سے دو طرفہ تعلقات پر بات کی گئی اور اس بات کا اعادہ کیا گیا کہ پاکستان اور سعودی عرب کے جو تعلقات ہیں وہ مثالی ہوں گے اور اس کو نئے سرے سے اور جدید طریقے سے آپس میں محبت چارے میں، بھائی چارے میں اس کا اضافہ کیا جائے گا۔ سعودی عرب میں دوران عبادت مسجد نبوی کے جگہ پر چند پاکستانی جو کہ مٹھی بھر تھے، انہوں نے وہاں پہ شور شرابہ کیا، چور چور کے نعرے لگائے اور جو خاتون ممبر تھیں مریم اورنگزیب صاحب، اس سے آوازیں کسیں اور شاہزین بگٹی کی بال کیونکہ بڑے ہیں ان کی چٹیاں بھی کھینچی گئی۔ پاکستان میں بالکل اس کو اچھا نہیں سمجھا گیا اور پوری دنیا میں اس کی مذمت کی گئی اور میں بھی اس کی مذمت کرتا ہوں۔ ہمیں اپنی سیاست کو اپنے گھر میں رکھنا چاہیے، عبادت گاہوں تک نہیں لے جانا چاہیے۔ مسجد نبوی ہمارے لیے ایک مقدس مقام ہے اور اس مقدس مقام پہ ہمیں ایسے نہ تو سیاسی شور، نہ ہی مظاہرے، وہاں تو اونچا بولنا بھی معجب سمجھا جاتا ہے، وہاں اونچا بولنا ایک گناہ ہے۔ تو ایسا ہمارے سیاسی جماعتوں کو، خواہ وہ کسی بھی جماعت سے تعلق رکھتے ہوں، ایسا طرز عمل کرنا مناسب نہیں ہے۔ عالم اسلام کے تمام مسلمانوں کے دکھ ہوا ہے، ان کو اس بات کا اور غمزدہ ہیں۔ پاکستان میں آج اس کے مظاہرے بھی کیے گئے اور اس کی شدید مذمت کی گئی۔ اب وزیر اعظم پاکستان کا دورہ مکمل ہو چکا ہے اور وہ عمرہ کی ادائیگی اور خانہ کعبہ کے طواف کے بعد، جو کہ ان کا خانہ کعبہ کا دروازہ کھولا گیا، ان کو مسجد نبوی اور ادھر پروٹوکول دیا گیا، اس کے ساتھ ساتھ بلاول بھٹو زرداری صاحب کو بھی اور ان کی کابینہ کے جتنے بھی اراکین تھے ان کو بڑے اچھے طریقے سے ویلکم کیا گیا۔ اب جو ہمارے وزیر اعظم وہ متحدہ عرب امارات کے دورے پہ نکل گئے ہیں اور وہاں کے وزیر انصاف جو ہیں انہوں نے ان کا استقبال کیا ہے۔ اب ایک دن کا دورہ ہے اور اس دورے میں بھی انشاءاللہ وہ کوئی نہ کوئی پاکستان کی بھلائی کے کام کریں گے یا اپنے دورے کو تقویت دیں گے اور اسلامی بھائی چارے کی جو ہماری بنیاد رکھی ہوئی ہے، جس پہ ہم برادر ملکوں کے ساتھ تعلقات بہتر رکھتے ہیں، تو وہ انشاءاللہ تعالی آج وزیر اعظم صاحب پاکستان واپس آ جائیں گے۔ سعودی عرب میں وزیر اعظم پاکستان کیا OIC کے جنرل سیکرٹری حسین ابراہیم سے بھی ملاقات ہوئی ہے، انہوں نے ان سے کشمیر کے مسئلے میں بھی بات چیت کی ہے۔ پاکستان میں ایک مہینے کے بعد پنجاب میں جو بحران تھا، جو حکومت سازی کا امتحان ہو رہا تھا، آج اللہ اللہ کر کے شہباز شریف کے بیٹے محمد حمزہ شریف شہباز کے حلف اٹھانے سے وہ مسئلہ حل ہو گیا ہے۔ ایسا ہے کہ ایک مہینہ پہلے
सबक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने इस्तीफ़ा दिया था और उस वक़्त के गवर्नर ने इस्तीफ़ा मंजूर किया था। फिर इलेक्शन हुए जिसमें बड़ा मार कुटाई हुई। पंजाब असम्बली जो थी उसमें पुलिस को भी जाना पड़ा। अमन व अमान के जो हालात थे वो कंट्रोल में नहीं थे। जो स्पीकर हैं परवेज़ इलाही साहब, उनको भी चोटें आईं, उनको भी लोगों ने मारा। और जो डिप्टी स्पीकर थे दोस्त मोहम्मद मज़ारी, उन पे भी तशद्दुद किया गया। तो कहने का मकसद ये है कि ये बड़ा मरला था। उसके बाद जब इंतखाब हो गया, वज़ीर आला मुंतखब हो गया, तो हलफ लेने की जब बारी आई तो गवर्नर ने हलफ लेने से इनकार कर दिया। फिर स्पीकर साहब को कहा गया, उन्होंने भी हलफ लेने से इनकार किया। फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने सुप्रीम हाई कोर्ट का दरवाज़ा खड़काया। हाई कोर्ट ने सदर मुमलिक पहले गवर्नर को ख़त लिखा और उसे कहा कि इनसे हलफ लें। जब उन्होंने नहीं लिया तो दोबारा जो था वो सदर मुमलिकत को ख़त लिखा गया और उनको कहा गया और उनसे रिक्वेस्ट की गई कि आप या आपका कोई नुमाइंदा मुंतखब वज़ीर आला हमजा शहबाज से हलफ ले, लेकिन वो भी मुमकिन ना हो सका। तो कल जो था वो हाई कोर्ट ने सुप्रीम जो हमारे स्पीकर हैं नेशनल असम्बली के राजा परवेज़ अशरफ साहब, उनको ऑर्डर किया था कि आप जो है ना इनसे हलफ लें। तो आज जब हलफ लेने का टाइम 11:30 बजे था, उससे पहले ही 8 बजे के करीब तमाम चैनल पर ये खबर नशर हुई कि जो गवर्नर हैं उन्होंने जो है ना उसका वज़ीर आला का इस्तीफ़ा जो है ना नामंजूर कर दिया है और उनको काम करने की हिदायत की है। बड़ा पूरा पाकिस्तान की आवाम परेशान हो गई। और वज़ीर आला साहब का जो था उस्मान बुज़दार साहब, वो भी सेक्रेटरीट आए और उन्होंने अपनी सूबाई काबीना जो थी, जो जिनमें वज़रा भी थे, जब उनका इस्तीफ़ा मंजूर नहीं हुआ तो वो उन सबको बुलाया और वहाँ पे इजलास किया। इसके साथ जो पीटीआई के जो वकला हैं उन्होंने भी एक रेड पिटीशन दायर की कि हमजा शहबाज का हलफ ना हो सके और ये हलफ रोक दिया जाए। जिस तरह के हाई कोर्ट ने आर्डर किए थे, गवर्नर हाउस में जो था इसके इंतजाम करने थे, तो पुलिस ने हाई कोर्ट को के हुक्म की बजा आवरी करनी थी। लेकिन गवर्नर साहब जो थे वो ये नहीं चाह रहे थे कि इसका हलफ जो है वो इसमें गवर्नर हाउस में हो। उन्होंने सदर मुमलिकत से दरख्वास्त की कि मुझे पहले उन्होंने खुद इसको रेंजर को बुलाया, रेंजर नहीं आई। फिर उन्होंने सदर से रिक्वेस्ट की कि मेरे जो घर है इसमें जो है ना ये ज़बरदस्ती पुलिस और ये लोग मेरे घुस आए हैं, मैं इनको यहाँ नहीं आना चाहता, तो लिहाजा मेरी मदद की जाए। तो सदर मुमलिकत ने भी इसकी मदद नहीं की। जब हलफ बर्दारी का टाइम हुआ, तकरीबन 1000 के करीब मेहमानों को मदऊ किया गया था और बड़ी हाई सिक्योरिटी की गई थी। 1000 इसके जिसका नाम था उसको अंदर आने की इजाज़त थी, नहीं तो इजाज़त नहीं थी। मुंतखब वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज शरीफ मरियम नवाज शरीफ की गाड़ी को ड्राइव करते हुए हलफ वाली जगह पे आए गवर्नर हाउस। और फिर जो था बड़े शोर और शराबे में जो था क्योंकि इतनी खुशी थी उनको, 1 महीने के बाद वज़ीर आला पंजाब हलफ ले रहा था, तो उसमें काफ़ी सारा शोर शराबा, लोगों की खुशी के इजहार और वगैरह वगैरह थे। तो राजा परवेज़ अशरफ साहब ने उनसे हलफ लिया। हलफ लेने के बाद फर्दन फर्दन वो लोगों से मिले और मिलने के बाद वो परेड पे चले गए। पंजाब पुलिस ने उनको गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया और इस तरह आज सुबह पंजाब में 1 महीने के बाद इसको अपना सरबराह मिला। उनका पहला ये कहना है कि मैं कल जनूबी पंजाब का दौरा करूंगा और वहाँ की महरूमियों को देखते हुए वहाँ पे जो भी फौरी तौर पर इक़दाम करने होंगे वो करूँगा। उसके अलावा उन्होंने इजलास बुलाया है जिसमें ईद की इंतजाम किए जाएंगे, क्योंकि हमारे मुल्क में काफ़ी सारे सिक्योरिटी अलर्ट हैं और उसके लिए वो काम करेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह 1 महीने बाद पंजाब में वज़ीर आला का इंतखाब जो है वो मुकम्मल हुआ और ये मरहला अब इसकी काबीना हलफ उठाएगी ईद के बाद। और जो है ना अब हालात जो हैं बेहतरी की तरफ चल पड़े हैं। साबिक
वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब ने लब कुशाई नहीं की इस बात पे कि जो सऊदी अरब में वाक़या हुआ है उस पर कोई पैगाम तो नहीं आया, लेकिन आज एक पैगाम जो उन्होंने नशर किया वो ये था कि ईद के फ़ौरन बाद मई के तीसरे हफ्ते में मैं एहतजाज की कॉल दे रहा हूँ, और वो सिर्फ PTI के मेम्बरान को नहीं, वो पाकिस्तान के तमाम आवाम को इस्लामाबाद आना होगा। और इसकी इब्तदा जो है ना वो चांद रात से की है कि चांद रात को पाकिस्तान के झंडे और PTI के झंडे लेकर अवाम बाहर निकले और अपना रिकॉर्ड कराए। तो ठीक है, हर सियासी पार्टी का, पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो, JUP हो, कोई भी हो, उसको एहतजाज करने का हक है, जल्द से जुलूस करने का हक है। वो भले लॉन्ग मार्च करें, शॉर्ट मार्च करें या कोई धरना दें, उनको पूरा पूरा हक है। लेकिन जो हमारे ईद के त्यौहार हैं, जो जिसमें हमारे बच्चों से लेकर बूढ़ों तक खुशी का इजहार करते हैं, एक दूसरे को मिलते मिलाते हैं, उस दिन ये मेरी तारीख में या मेरी सोच में पहला दिन है जिसमें कि ईद की चांद रात को जो है ना वो एहतजाज होगा, और तमाम जो लोग हैं वो ईद की खुशियां मनाने की बजाय जनाब इमरान खान साहब के हुक्म को फॉलो करते हुए रोडों पे निकलेंगे। जब हमारी बच्चियां, जब हमारी बहनें, जब हमारी माएँ, जब हमारे भाई, जब हमारे बच्चे ईद की शॉपिंग कर रहे होंगे और ये उस वक्त भी एहतजाज कर रहे होंगे। तो मेरी रिक्वेस्ट है तमाम सियासतदानों से कि इस तरह के इकदाम जब हमारे मुल्क में खुशी मनाई जा रही हो, खुशी का त्यौहार हो, तो खुदारा अपनी सियासी सरगर्मियाँ ज़रा कम रखें। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आज जिला बहावलपुर अहमदपुर शर्किया में एक अंधनाक वाक़या हुआ है जिसमें जनूबी पंजाब की आवाम बड़ी दुखी है और परेशान है कि एक दो फरीकैन जिनके आपस में दुश्मनी चल रही थी, 5 अफराद जो थे वो जेल में बंद थे, तो उनकी बेल हो गई। जब वो रिहाई पाकर अहमदपुर शर्किया के इलाके में अपने घर को जा रहे थे तो नामालूम मोटरसाइकिल सवार आए और उन सब पे गोलियों की बौछार कर दी, जिससे 5 जो जवान थे वो कत्ल हो गए। ये दुश्मनियाँ जो हैं इस तरह नहीं होनी चाहिए। अल्लाह पाक हमारे लोगों को के दिल में रहम पैदा करे। ईद के दिनों में इस तरह की कत्ल गारत हमें जो है ना बड़ा एज ए कौम बड़ा गम दे गई है, और पूरा इलाका जो है वो गमगीन है। कल रात कराची में नटी जटी के मकाम पर एक औरत आयशा बीबी अपने 3 बच्चों को लेकर उसने पुल से छलांग लगा दी और खुदकशी करने की कोशिश की। वहाँ की जो इंतज़ामिया थी, जो उसके साथ जो ट्रस्ट था, उन्होंने फौरी तौर पर इक़दाम किए, न सिर्फ उस खातून को बचाया बल्कि उसके 3 बच्चों को भी बहिफाजत निकाल लिया। उससे जब पूछा गया तो उसने कहा कि मेरा शौहर इतना नहीं कमाता कि मैं अपना घर चला सकूं, मेरे बच्चे खाने को रो रहे थे और ईद के दिन हैं, तो वो जो था मुझसे कोई बच्चा कपड़े मांग रहा था, तो कोई कुछ मांग रहा था, मेरे पास कुछ नहीं था, तो मैं दिल बर्दाश्ता हो गई और मैंने कहा हमें इस दुनिया में जीने का कोई हक नहीं है, इसलिए मैंने खुदकुशी करने की कोशिश की। तो बड़ा उनको तो बचा लिया गया। बाद में एक ट्रस्ट ने, एक तंजीम ने, ज़फ़र भाई जिसके सरबराह हैं, JDA जिसको कहते हैं, उन्होंने उनके मुतालबात भी माने, रक्षा भी लेकर दिया और रक्षा का चलाता था। तो ये कहने का या बात करने का मकसद सिर्फ ये है कि हमारी बहनें, हमारी माएँ, हमारे भाई, हमारे बच्चे इस तरह के इक़दाम करने से परहेज़ करें और जज्बाती ना हों। दुनिया में सब कुछ होता है, क्या कहते हैं, दिल बर्दाश्ता भी होता है और खाने को भी कुछ नहीं मिलता, लेकिन खुदकुशी करना एक गुनाह है और ये गुनाह कबीरा है। अल्लाह पाक फरमाता है कि मैं सब गुनाह माफ़ कर दूं, लेकिन जिसने मेरे साथ मुकाबिल हुआ, जिसने अपने आप को मारा, उसकी बख्शिश नहीं होगी। तो लिहाजा मैं अपने आखिर में अपने तमाम गरीब गुरबा बहन भाइयों से अपील करूँगा
کہ اس طرح کے اقدامات اٹھانے سے پرہیز کریں، نہ صرف اپنے آپ کو سوچیں، اپنے رشتہ داروں کا، اپنے بہن بھائیوں کا، اپنے بچوں کے بارے میں سوچیں اور اس طرح کے اقدامات سے گریز کریں۔ آج تک اتنا ہی، ریاض عرب کو اجازت دیجیے، پھر ملیں گے پروگرام میں انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔